Students, welcome to my YouTube channel. Once again, this is Dr. Akash, and today we will discuss some numericals from NCERT based on Ventoff factor. Actually, this is part second. पार्ट फर्स्ट में मैंने वेंटॉफ फैक्टर का डेरिवेशन करके बताया है एसोसिएशन और डिसोसिएशन दोनों के केस में, तो आप पार्ट फर्स्ट भी देख सकते हैं। मैं उसका लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि कैलकुलेट डेल्टा टी एफ निकालना है। इफ़ 10 ग्राम ऑफ दिस एसिड इज एडेड टू 250 ग्राम ऑफ वाटर, देन solute is equals to 10 gram, solvent 250 gram. This is given weight. So we have to calculate the molecular weight of this solute, that is CH3, CH2, CH, Cl, COOH. Now that is CH3 12 plus 1 into 3 plus 12 plus 1 into 2 plus 12 plus 1 plus 35.5 plus 12 plus 16 plus 16 plus 1, इन सबको ऐड करेंगे आ जाएगा 122.5 ग्राम पर मोल. This is what? This is basically the molecular weight. Now, molality is equals to WB upon MB into WA into 1000, because this WA is not in kg. Now, WB is what? WB is 10 gram, MB is 122.5 gram, WA is 250 gram एंड 1000 के लिए फिर से 1000. नाउ इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं. तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.32 मोल पर केजी. ये हो गया हमारा कंसंट्रेशन. दिस इज कंसंट्रेशन. नाउ CH3, CH2, CH, Cl, COOH, ये था एसिड. जब ये एसिड डिसोसिएट होगा तो बनेगा CH3, CH2, CH, Cl, COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, क्योंकि एसिड है तो वो H पॉजिटिव ही देगा. नाउ एट टाइम T इज इक्वल्स टू 0, this is 1 mole and this is 0 and 0. Now at T is equals to T1 time, alpha amount gets detached or dissociated, then this becomes alpha and this become also alpha. If the concentration is C, then we may write this expression as C and C alpha and C alpha. Now the equilibrium constant K for this acid will be equals to C alpha into C alpha, means concentration of product upon concentration of reactant. Now that is C square alpha square अपॉन C 1 माइनस अल्फ़ा. ये इससे कैंसिल हो गया. देन बचा क्या? C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू के ए. इफ एसिड इज वेरी वेरी वीक, देन अल्फ़ा इज वेरी वेरी लेस देन 1. So alpha can be neglected.
नाउ के ए इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1, अल्फा को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, then alpha square is equals to k upon c, or you can write alpha is equals to k upon c और उसके ऊपर रूट. Now value of k according to question is 1.4 into 10 to the power minus 3 and c हमने कैलकुलेट करा है 0.32 and this will be equals to 0.065. This is the value of what? This is alpha. हमारे पास क्या निकल गया? Degree of dissociation. Now from Van 't Hoff, I is equals to number of particles present in solution upon total number of particle. You can write this as observed upon normal. जो भी आपने ऑब्जर्व करा, तो आपने क्या ऑब्जर्व करा कि वहाँ पर कितने मोल हैं? 1 माइनस अल्फ़ा है और एक और अल्फ़ा है. टोटल मोल कितना लिया था? 1. ये टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे था, ये टाइम t इज इक्वल्स टू t1 पे था. देन इसमें से अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो गया, क्या बचा? 1 प्लस अल्फ़ा अपॉन 1 इज इक्वल्स टू आई. देन आई विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी निकाली? 0.065. दैट इज 1.065. This is I. Now we have formula delta TF is equals to KF into M. In case of Van 't Hoff, this formula becomes I KF into M. Then delta TF is equals to 1.065 into 1.86, that is KF, into molarity कितनी निकाली थी? 0.32. इन सबको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 0.65 डिग्री सेल्सियस. That is answer. So guys, now we have the next question. Question number 33. 19.5 gram of this acid dissolved in 500 gram of water. Delta TF 1.0 degree Celsius given. Van 't Hoff फैक्टर का कैलकुलेशन करना है एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकालना है. मतलब आपको निकालना है के एंड आई. गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें. मैं उस पर डेली अपडेट करता हूँ एनसीईआरटी से रिलेटेड टॉपिक्स, तो उससे आपको सारी स्टडी मटेरियल्स मिलते रहेंगे. एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. नाउ कम टू द पॉइंट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट कंसंट्रेशन. Now concentration molality is equals to WB upon MB into WA into 1000. इसके लिए MB निकालनी पड़ेगी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट CH2FCOOH. इसका मास निकालेंगे 12 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 19 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1. इस पूरे को कैलकुलेट कर लेंगे, क्या आ जाएगा? 78. नाउ कंसंट्रेशन निकालते हैं. WB इज 19.5, MB is 78, WA is given 500 एंड 1000 के लिए 1000. सिंपली इसको कैंसिल कर देंगे 2 से, इसको 3 9. नाउ आंसर इज 0.5 मोल पर kg.
Now, and this is what? This is the calculated मोलर मास, और हमारे पास क्या गिवन है? डेल्टा टी एफ, जिसका फॉर्मूला क्या है? के बी इंटू एम। अब इस डेल्टा टी एफ से हम निकाल सकते हैं क्या? के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 इज इक्वल्स टू डेल्टा टी एफ। यहाँ से जो एम बी निकल के आएगा दैट इज ऑब्जर्व्ड। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट ऑब्जर्व्ड is equals to Kb into Wb upon delta Tf into Wa into 1000. So after putting the values, sorry, that is Kf, मैं बार बार Kb लिख दे रहा हूँ उसको। Kf की वैल्यू क्या है? 1.86 वाटर के लिए, Wb की 19.5, 1000 के लिए 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ की वैल्यू क्या है? डेल्टा टी एफ की वैल्यू गिवन है 1 एंड डब्ल्यू ए क्या है? 500। नाउ दिस विल बिकम 72.5 ग्राम एंड दिस इज व्हाट? दिस इज molecular mass observed. So now we have two types of molecular mass. One is calculated, that is 78, and one is observed, that is 72.5. So I will be equals to molecular mass calculated upon molecular mass observed, that is 78 upon 72.5, and that will be equals to 1.07 something. Now write the equation CH2FCOOH will give CH2FCOO negative plus H positive. So at time t is equals to 0, that is 1, this is 0 and this is 0. Time t is equals to t1, 1 minus alpha, this is alpha and this is alpha. So total number of mole is equals to 1 minus alpha plus alpha plus alpha, which is equals to 1 plus alpha, and total number of mole calculated mole कितना था? वो था 1, क्योंकि यही हमने क्या लिया था इनिशियल में। Then I will be equals to what? Observed upon calculated, that will be equals to 1 plus alpha. This is observed, final value है ये, initial value क्या है? 1. Now it is clear that I is equals to 1 plus alpha. We know that I हमने कहाँ से कैलकुलेट करा है? मॉलिकुलर मास कैलकुलेटेड अपॉन मॉलिकुलर मास ऑब्जर्व से, that is 1.07 is equals to 1 plus alpha. So alpha will be equals to 1.07 minus 1, that is 0.07. ये क्या है? ये है अल्फा की वैल्यू। नाउ इक्वेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। Ka will be equals to C alpha into C alpha upon C1 minus alpha, same as in the previous question. Now this is equals to C square alpha square upon C1 minus alpha. इससे कैंसिल हो गया, क्या बच गया? C alpha square upon 1 minus alpha, that is equals to Ka. If alpha is very less,
सो के इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर ओनली अपॉन 1, या फिर इसको हम नॉर्मली सी अल्फा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। मोलैलिटी हमने कैलकुलेट की हुई है 0.5 एंड दैट इज कंसंट्रेशन। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ सी। नाउ के ए विल बी इक्वल्स टू 0.5 इंटू अल्फ़ा क्या लेके आए थे 0.07 इंटू मतलब 0.07 का स्क्वायर, तो 0.5 इंटू 0.07 इंटू 0.07 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 2.8 into 10 to the power minus 3. This is the answer. Now here is one more question. Question number 40. Determine the amount of calcium chloride when tau factor given 2.47 dissolve in 2.5 liter of water such that osmotic pressure becomes this at temperature this. So T is equals to 27 degrees Celsius, that is equals to 300 Kelvin. Pi is equals to 0.75 atm. Volume will be equals to 2.5 liter and I is equals to 2.47. We know that pi is equals to CRT or pi is equals to n upon VRT or pi is equals to I n upon VRT. We have to calculate the amount, एंड अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन n विल बी इक्वल्स टू पाई इंटू वी अपॉन आई इंटू आर इंटू टी। यहाँ पे r क्या लेंगे 0.0821। नाउ पाई कितना है, सब कुछ क्वेश्चन में गिवन था हमारे, एंड पाई इज 0.75। वॉल्यूम कितना है 2.5, आई की वैल्यू क्या है 2.47, आर कितना लिया है 0.0821, टेम्परेचर कितना है 300। सबको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आप लोग इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए, 0.0308। This is the value of n. Now molar mass of CaCl2, that is equals to 40 plus 71,111. Now amount will be equals to 0.0308 into 111, which is equals to समथिंग 3.42 ग्राम। गाइज़ आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यूज़फुल एंड वैल्यूएबल कमेंट्स को मेरे पास भेजिए। आप पूरी सीरीज़ देख सकते हैं सॉल्यूशन चैप्टर की, जो सेगमेंट वाइज बनी है, जिसमें एलिवेशन, डिप्रेशन, रॉल्स लॉ, कंसंट्रेशन प्लस NCERT सॉल्व सीरीज़ भी इंक्लूड है। ओके गाइज, थैंक यू।